Hello aspirant, Khammagani. My name is Ravikant and I'm again with my PTR series episode 2. Today we will be discussing two topics, one incest taboo theories and second type of marriage. Before starting, I want to thank you all guys for supporting on my first video and your encouraging reply. So let's start the topic incest taboo. In the introduction itself, these two keywords prospective and primary kins are very important. So 2P are very important in introduction, prospective and primary kin. After introduction, give a diagram. This is a diagram of incest of father and daughter. It's very important. Now look into the example or the case study. Ashanti tribe of Ghana. So after practicing incest in society, क्या हो सकता है? अशांति हो सकती है. So try to link अशांति and example Ashanti tribe of Ghana. So in this tribe, after practicing incest, they may award a death penalty because they considered as a sin to God and contamination to the entire community. There is an also exception to the incest taboo in the three society, Inca, Hawaii and Egypt. So it is not an universal. If you provide this just after introduction, it will help you to fetch marks and try to give reason on every example. So basically there are 5 theories in incest taboo. I have given mnemonics PIC, peak of two family, family 1 and family 2. So P stand for psychoanalytical theory, I for inbreeding avoidance theory, C for cooperation theory, family 1 family cooperative theory and family 2 family disruption theory. Now we will moving into deep of theories. So you have to remember 4 common structure in every theory. So it will including author, main theory, case study or the value addition and fourth criticism. In every theory we will be dealing with these 4 structure. See, for example, psychoanalytical theory, author, the main theory and criticism. If there is value addition, we will be providing value addition. Before dealing into the 5 theories, आप बस ये एक चीज़ का ध्यान रखना कि थ्योरीज के अंदर जब आप थ्योरी उसकी जो मेन थ्योरी दोगे तो उसमें 2 एस्पेक्ट हमेशा कवर करना. अगर वो 2 एस्पेक्ट आपने कवर कर लिया तो आपकी जो थ्योरी है वो होलिस्टिकली कवर हो जाएगी. पहला एस्पेक्ट थ्योरी का क्या होगा, मेन थ्योरी क्या है. दूसरा, इफ़ इंसेस्ट इज़ प्रैक्टिस, तो उस डायरेक्शन में सोचना. तो हर थ्योरी में मैंने ये 2 एस्पेक्ट कवर किए जिससे आपकी जो थ्योरी है वो होलिस्टिकली कवर हो जाएगी. पहला कि उस ऑथर ने मेन प्रीमिसेस में क्या दिया है. दूसरा, इफ़ इंसेस्ट इज़ अलाउड. फॉर एग्जांपल, साइको एनालिटिकल थ्योरी वॉज गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड. सो सिगमंड फ्रॉइड के बारे में मैं आपको कंटेक्स्ट दे देता हूँ जिससे आपको याद आसानी से हो जाएगा. सिगमंड फ्रॉइड, फर्स्ट हम लोग इसको ओरिजिन ऑफ रिलीजन में पढ़ेंगे. दूसरा, जब भी सिगमंड फ्रॉइड थ्योरी देता है वो चिल्ड्रन को या चाइल्ड को हमेशा फोकस पॉइंट पे रखता है. थ्योरी के 2 एस्पेक्ट. पहला, सिगमंड फ्रॉइड ने कहा है चिल्ड्रन के बारे में, क्या कहा है. सो वी आर डीलिंग विथ फर्स्ट एस्पेक्ट कि चिल्ड्रन में इंस्टिंक्ट होती है टू परफॉर्म द इंसेस्ट. हाउएवर, ये पहला एस्पेक्ट हो गया. दूसरा एस्पेक्ट, व्हाट इफ इंसेस्ट इज प्रैक्टिस. However, if they practice incest, they may get sanction or punishment from the elders. So the whole story after including the 2 aspects would be children have instinct to perform incest, but due to fear from the elder, they do not convert their thought into action. So this is the होल थ्योरी आफ्टर कन्वर्जिंग दिस 2 एस्पेक्ट. तो अभी आगे जो भी हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे इसमें ये 2 एस्पेक्ट कवर करना, आपकी जो थ्योरी है वो होलिस्टिकली कवर हो जाएगी. क्रिटिसिज्म हम लोग एक साथ लास्ट में बात करेंगे. अब इनब्रीडिंग अवॉइडेंस थ्योरी. इनब्रीडिंग अवॉइडेंस थ्योरी इज़ अ वेरी ओल्ड थ्योरी. तो उसका जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होगा वो भी बहुत पुराना होगा. एल.एच. मॉर्गन इज़ अ वेरी पुराना एंथ्रोपोलॉजिस्ट. इसको इवोल्यूशनिस्ट में कैटेगराइज करते हैं हम लोग. सेकेंड, इनब्रीडिंग इज़ अ बायोलॉजिकल टर्म. तो इसकी जो मेन प्रीमिसेस होगा
वो भी एक बायोलॉजिकल टर्म होगा, मतलब जीन। इनहेरिटेंस ऑफ हार्मफुल सक्सेसिव जीन, ये हो गया इसका मेन थ्योरी। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा, व्हाट इफ इंसेस्ट इज अलाउड। सो इफ इंसेस्ट इज अलाउड द ऑफस्प्रिंग मे हैव इलनेस और वीकनेस विच मे रिजल्ट इन टू डेथ ऑफ एन ऑफस्प्रिंग। तो ये पूरी थ्योरी हो गई। ओके, सो ट्राई टू कवर दिस टू एस्पेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी फॉर दिस इन ब्रीडिंग अवॉइडेंस थ्योरी, केस स्टडी ऑफ टोरकोपिया आइलैंडर्स। यहाँ पे कंसेप्ट है मारा का। दे कंसिडर दैट इफ एनी वन परफॉर्म इंसेस्ट अ मारा मे बी reproduce. मारा मीन इलनेस एंड वीकनेस इन अ चाइल्ड। तो ये आप याद रखना, इट्स अ वैल्यू एडिशन, नोट डाउन कर लेना। कॉपरेशन थ्योरी, ई.बी. टाइलर। सो इट्स अ वेरी फेमस थ्योरी गिवन बाय ई.बी. टाइलर। इसकी कोई कंटेक्स्ट या ट्रिक नहीं है, ट्राई टू रिमेंबर बाय हार्ट बिकॉज बहुत फेमस पर्सनैलिटी है। हाँ, मेन प्रीमिसेस की बात करते हैं। कॉपरेशन थ्योरी, सो इट विल बी टॉकिंग अबाउट कॉपरेशन किसके बीच में, अमॉन्ग फैमिली मेंबर। तो पहला एस्पेक्ट हो गया इसका मेन प्रीमिसेस, कॉपरेशन है तो कॉपरेशन अमॉन्ग फैमिली मेंबर। दूसरा एस्पेक्ट इसका क्या होगा, व्हाट इफ इंसेस्ट इज अलाउड। तो अगर फैमिली मेंबर्स के अमॉन्ग इंसेस्ट अलाउड हो गया, द एनवायरमेंट मे गेट इनटू सस्पिशियस और हॉस्टाइल। इसका दो हो गया। तो अब इन दोनों एस्पेक्ट को आप कन्वर्ट कर दो तो पूरी थ्योरी क्या हो जाएगी, इट टॉक अबाउट कॉपरेशन अमॉन्ग द फैमिली मेंबर। However, if incest is allowed, the environment may get into suspicious और hostile environment. इसका वैल्यू एडिशन है, ई.बी. टेलर ने एक लाइन बोली थी, ब्रीड आउट और पेरिस। सो ट्राई टू गिव दिस इंपॉर्टेंट लाइन गिवन बाय ई.बी. टाइलर। फोर्थ थ्योरी, फैमिली कोऑपरेटिव थ्योरी, इट वॉज गिवन बाय लेवी रॉस। तो लेवी रॉस जब सोसाइटी को स्टडी करता है, मैं आपको कंटेक्स्ट दे रहा हूँ जिससे आपको फैमिली कोऑपरेटिव थ्योरी जो है याद रहेगी कि इट वॉज गिवन बाय लेवी रॉस। लेवी रॉस वेन एवर ही स्टडी द सोसाइटी, ही ट्राई टू स्टडी द माइंड ऑफ इंडिविजुअल और ए ग्रुप। सो ही मेड एन एजम्पशन दैट इन अर्ली टाइम्स फैमिली यूज टू लिव इन अ हॉस्टाइल एनवायरमेंट, सो दे वुड हैव टू ऑप्शंस। वही दो एस्पेक्ट की बात की है। पहला ऑप्शन कि वो आउटसाइड मैरी करे और हॉस्टिलिटी को रिड्यूस करें। दूसरा ऑप्शन कि अपनी फैमिली के अंदर ही मैरिज करें और जो ग्रुप है वो लार्ज कर दें। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फैमिली कोऑपरेटिव थ्योरी में कॉपरेशन की बात करेंगे कि आप बाहर वाले से कॉपरेशन करो, मैरी करो और हॉस्टिलिटी को जो है वो रिड्यूस करो, या विद इन द फैमिली आप वो चीज़ प्रैक्टिस करो और अपने ग्रुप को लार्ज करो। तो ये दो एस्पेक्ट इसने कवर किए थे लेवी रॉस ने। द फिफ्थ थ्योरी, फैमिली डिसरप्शन थ्योरी, इट वॉज गिवन बाय फ्रॉड एंड मालिनोस्की। इट्स अ वेरी फेमस थ्योरी। दो बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने साथ में मिलकर काम किया है, फैमिली डिसरप्शन थ्योरी। सो ट्राई टू रिमेंबर दिस। तो इसका मेन प्रीमिसेस क्या होगा, डिसरप्शन है तो ऑब्वियसली किसकी बात की होगी, डिसरप्शन की, कि डिसरप्शन अवॉइड कर पाए। कैसे करेंगे, बाय डाइवर्टिंग सेक्सुअल फीलिंग्स अमॉन्ग द मेंबर ऑफ फैमिली। दूसरा एस्पेक्ट, अगर इंसेस्ट प्रैक्टिस होता तो क्या होगा, देयर मे अराइज रोल कॉन्फ्लिक्ट। फॉर एग्जाम्पल, फादर एंड डॉटर्स आर इनकम्पेटिबल विद द टाइटल ऑफ हस्बैंड और वाइफ। सो दो एस्पेक्ट आपको कवर करना है और फैमिली डिसरप्शन थ्योरी जो है हॉलिस्टिकली कवर करके आना है। अब हम क्रिटिसिज्म जो है सबका साथ में पढ़ेंगे। उसकी मेन थ्योरी जो है, जो मेन प्रीमिसेस है, जो मैंने आपको दो एस्पेक्ट बताया था, उसमें जो पहला एस्पेक्ट है उसी से आपको क्रिटिसिज्म निकालना है। लेट्स सी हाउ क्रिटिसिज्म इज डिराइव फ्रॉम देम। साइको एनालिटिकल थ्योरी में सिगमंड फ्रॉइड ने चिल्ड्रन की बात की थी कि चिल्ड्रन डरते हैं टू प्रैक्टिस इंसेस्ट क्योंकि एल्डर है वहाँ पे प्रेजेंट। तो क्रिटिसिज्म में स्कॉलर्स ने कहा कि उन सोसाइटी का क्या जहाँ पर एल्डर है ही नहीं। तो ये इसका बहुत मेन क्रिटिसिज्म हो गया। इन ब्रीडिंग अवॉइडेंस थ्योरी का जो मेन क्रिटिसिज्म है वो ये कह रहा है कि जो प्रिमिटिव लोग थे या जो अर्ली मैन थे, उन लोगों को जीन इनहेरिटेंस के बारे में नॉलेज ही नहीं थी, तो उन्होंने ये कैसे परफॉर्म कर लिया, इंसेस्ट टैबू जो है वो कैसे अडॉप्ट कर लिया। तो ये इसका मेन क्रिटिसिज्म हो गया। कॉपरेशन थ्योरी का जो क्रिटिसिज्म है वो है जो वो तीन हम लोगों ने एक्सेप्शन पढ़े थे, जिसमें इजिप्ट था, हवाई था और इंका था। वहाँ पर जो एनवायरनमेंट है
वो हॉस्टाइल और सस्पिशियस क्यों नहीं हो रहा है बजाय सिस्टर और ब्रदर की मैरिज होने के बाद भी। तो ये इसका मेन क्रिटिसिज्म था। फोर्थ थ्योरी का जो मेन क्रिटिसिज्म था फैमिली कोऑपरेटिव थ्योरी का, उन्होंने कहा है, स्कॉलर्स ने क्रिटिसाइज करते हुए कहा है कि लोगों ने मिडिल पाथ क्यों नहीं अडॉप्ट किया। मतलब आधे लोग जो है वो फैमिली के बाहर मैरिज करके हॉस्टिलिटी को रेड्यूस कर दे और आधे लोग जो है फैमिली में ही मैरी करके जो साइज है वो लार्ज कर दे। तो वो आंसर नहीं दे पाए लेवी रॉस, तो ये इसका बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म था। पांचवें थ्योरी का जो क्रिटिसिज्म था फैमिली डिसरप्शन थ्योरी, वही जो एक्सेप्शन हम लोगों ने देखा था तीन इजिप्ट, इंका और हवाई, उनमें ये रोल कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं दिखता हमें। आफ्टर डिस्कसिंग दिस 5 थ्योरी हम लोगों को रेलेवेंस देना है बिफोर द कंक्लूजन, तो इससे एक एडिशनल डायमेंशन मिलेगी एग्जामिनर को हमें देने के लिए। रेलेवेंस के अंदर वही 6 रीजन देना जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था इस निमोनिक के द्वारा। मैरिज रेगुलेशन में मैंने आपको 6 रीजन दिए थे। निमोनिक्स क्या था उसका कि एक सोसाइटी होगी, मैंने इस डायग्राम से सर्कल से मैंने सोसाइटी बताई थी। फिर उस सोसाइटी में एक हायरार्की होगी, प्योरिटी वर्सेस पॉल्यूशन का कंसेप्ट होगा, प्रॉपर्टी की बात होगी, स्टेक होल्डर होगा जिसमें वुमन, विडो वुमन और चिल्ड्रन होगा, और एक स्टेक होल्डर होगा जिसमें फैमिली होगी जो अलायंस की बात करेगी। तो यहाँ पे जब इंसेस्ट हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें रेलेवेंस सिर्फ हम 2 ही जगह देख सकते हैं कि इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी, मतलब ये बड़े वाले सर्कल की, और अलायंस विद इन दी 2 किन ग्रुप्स। तो पहले हम लोग अलायंस की बात करते हैं। अलायंस कैसे होती है इंसेस्ट टैबू होने के कारण, अलायंस कैसे हो पा रही है। ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो इंसेस्ट टैबू था वो एक्ट एज ए डेटरेंस, जिसके कारण लोग जो है वो बाहर मैरी करते थे और अपनी अलायंस जो है वो स्ट्रॉन्ग करते थे। ये हो गई ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात। मॉडर्न सोसाइटी में अलायंस कैसे बिल्डअप होता है, इंसेस्ट टैबू जो है वो एंकरेज करता है इंडिविजुअल को या ग्रुप को टू मैरी आउटसाइड देयर ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल इंटरकास्ट मैरिज इन मॉडर्न सोसाइटी। इंसेस्ट टैबू है तभी जो लोग हैं वो अपने ग्रुप से बाहर देख रहे हैं, सो इट लीड इन टू अ इंटरकास्ट मैरिज। तो ट्रेडिशनल सोसाइटी में एक्ट एज ए डेटरेंस और मॉडर्न सोसाइटी में एक्ट एज अ टूल टू बिल्ड दी सोशल रिलेशनशिप, फॉर एग्जाम्पल इंटरकास्ट मैरिज। अब स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी की कैसे इंसेस्ट टैबू जो है, अब इंसेस्ट टैबू जो है वो स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी में कैसे हेल्प करता है, ये हम लोग यहाँ पर लिंक कर सकते हैं इस टॉपिक को किनशिप बिहेवियर के साथ या किनशिप टॉपिक के साथ, जिसमें अलायंस थ्योरी विच वॉज गिवन बाय लेवी रॉस, उन्होंने कहा जो इंसेस्ट टैबू है वो पॉजिटिव मैरिज रूल है विच हेल्प टू एस्टेब्लिश द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द सोसाइटी फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ दी होल सोसाइटी। सो काइंडली एक बार मेरा प्रीवियसली वीडियो आप देख लेना जहाँ पर मैंने वो 6 रीजन्स डिस्कस किए थे, और इंसेस्ट टैबू में आपको वही 2, एक अलायंस का बात कर देना और दूसरा जो है वो स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी में आप लिंक कर देना अलायंस थ्योरी को। अब हम बात करेंगे कंक्लूजन की, जनरल कंक्लूजन की। तो यहाँ पे हम कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में, इसमें भी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था। एंथ्रोपोलॉजी की जो यूनिकनेस है, किसमें यूनिकनेस है, वो एक हॉलिस्टिक सब्जेक्ट है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रखता है, सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट रखता है, बायो कल्चरल एस्पेक्ट रखता है, क्वालिटेटिव टूल डाटा है इनके पास, कंपैरेटिव स्टडी है, हिस्टोरिकल स्टडी है। तो इन्हीं वर्ड को यूज़ करके आपको कंक्लूजन बनाना है। फॉर एग्जांपल मैंने इंसेस्ट टैबू में कैसे कंक्लूजन बनाया, इट द स्टडी ऑफ इंसेस्ट टैबू प्रोवाइड स्कोप फॉर बायो कल्चरल एस्पेक्ट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ मैरिज। यहाँ पर हम बेसिकली फोकस करेंगे एग्जाम्पल रिमेंबरिंग में। इंट्रोडक्शन में आप कैथलीन गो की डेफिनेशन डालना, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कैथलीन गो में अगर आप 3 डायमेंशन इंक्लूड कर देते हो तो आपकी डेफिनेशन बहुत आसान हो जाएगी। पहला उसकी नेगेटिव टून है डेफिनेशन की, दूसरा वो कंडीशन प्रोवाइड करती है, तीसरा वो बर्थ स्टेटस राइट की प्रोवाइड करती है। तो डेफिनेशन क्या हो गई, अ रिलेशनशिप बिटवीन अ वुमन एंड one or more person in such a way that the offspring born to a woman under certain circumstances, तो ये हो गई कंडीशन। नॉट प्रोहिबिटेड बाय द रूल्स ऑफ रिलेशनशिप, ये हो गई नेगेटिव टोन। गिवन द बर्थ स्टेटस राइट,
तो ये हो गई बर्थ राइट की बात। तो ये 3 कंडीशन अगर आप इंक्लूड कर दोगे तो कैथलीन गो की जो डेफिनेशन है वो आपको आसानी से याद हो जाएगी। टाइप्स ऑफ मैरिज जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक मोनोगामी और एक पोलोगामी। वेरी इजी, बस उसमें कीवर्ड याद रखना जब आप डेफिनेशन लिख रहे हो, एक एट अ गिवन टाइप और एट वन स्पाउस, वन मैन, वन हस्बैंड, वन वुमन मत लिखना, वन स्पाउस एंड अ गिवन टाइम। मोनोगामी 2 टाइप की होती है, सीरियल और नॉन सीरियल। अब यहाँ पर भी हम लोग यही करेंगे, एग्जाम्पल और उसके रीजन। एग्जाम्पल इज यूएसए। यूएसए में डाइवोर्स रेट बहुत ज़्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, वहाँ पे सिर्फ मोनोगामी ही लीगल है, इसीलिए सीरियल मोनोगामी काफ़ी प्रैक्टिस होती है। तो ट्राई टू गिव एग्जाम्पल विथ रीजन। सेकेंड रीजन क्या हो सकता है, जो सीरियल मोनोगामी है वो इक्वल राइट देता है टू बोथ मैन एंड वुमेन टू हैव देयर इक्वल पार्टनर्स। तो ये एस्टेब्लिश करता है इगैलिटेरियन फॉर्म ऑफ मैरिज। अब है नॉन सीरियल, माने वन थ्रू आउट दी लाइफ। तो इसका एग्जाम्पल है नायर्स ऑफ मालाबार। इसको मैं कैसे याद कराऊंगा, नायर्स में से आर हटा दो तो क्या बन जाएगा, NAYA, नया। नया मतलब अब लाइफ में कोई नया पार्टनर नहीं होगा। आई नो दिस इज चाइल्डिश, बट आपको रिकॉल करने में हेल्प करेगा। तो नॉन सीरियल का कोई नया मेंबर नहीं आएगा, तो नायर्स ऑफ मालाबार। अब इसी का रीज़न दे देंगे, बिकॉज वाई दे प्रैक्टिस नॉन सीरियल, बिकॉज वुमेन कैन कंट्रोल ओवर देयर लाइफ रेदर देन अदर, ये उनका रीज़न है। दूसरा टाइप ऑफ मैरिज पॉलीगामी। इसमें टोटल 3 टाइप के होते हैं, एक है पॉलीगाइनी, एक है पॉलीएंड्री और एक है ग्रुप मैरिज। तो ये 3 आप याद रखना। डेफिनेशन में ध्यान रखना, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम लिखना है और मोर देन वन स्पाउस। पॉलीगाइनी में होते हैं 2 टाइप के। पॉलीगाइनी बहुत आसान है, पॉलीगाइनी मतलब 1 मैन और मोर फीमेल्स। तो हो सकता है वो फीमेल जो है आपस में सिस्टर है, और हो सकता है वो आपस में सिस्टर नहीं है। अगर सिस्टर है तो सोरोलर टाइप होगा, और अगर सिस्टर नहीं है तो नॉन सोरोलर टाइप होगा। अब इसका आपको मैं एग्जांपल याद कराता हूँ। इसका एग्जांपल है स्वाजी ऑफ अफ्रीका। सो ब्रेक दिस टर्म, स्वा प्लस जी। स्वा माने स्वागत और जी माने रेस्पेक्टेड पर्सन या रेस्पेक्टेड हस्बैंड। तो 2 बहनें जो है वो स्वागत कर रही है अपने रेस्पेक्टेड हस्बैंड का। सो ये भी बहुत फनी है, लेकिन आपको याद हो जाएगा। अब इसका रीज़न देंगे हम लोग, बिकॉज दे बिलीव दैट 2 सिस्टर हैव बेटर चांस ऑफ गेटिंग। नॉन सोरोलर का जो एग्जाम्पल है उगांडा, नॉर्थ ईस्ट उगांडा के ट्राइब्स। कैसे याद करोगे, अगर वो वाइफ्स जो है वो आपस में सिस्टर नहीं है तो उनके बीच में क्या होगा, सिविल वॉर। और सिविल वॉर सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, अफ्रीकन की कुछ कंट्री में, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट उगांडा। अब इसके रीज़न क्या हो गए, हाई ब्राइड वेल्थ। एक माँ बाप अपनी बच्चियों को इसलिए देते हैं क्योंकि जो ब्राइड वेल्थ है वो बहुत हाई है। सेकेंडली मेल डोमिनेंस। थर्ड अर्न कैटल टू सेटल डेप्थ। तो ये इसके रीजन्स हो गए। अब इसमें वैल्यू एडिशन है जो मैं आपको साथ में बताऊंगा। पॉलीएंड्री, इसमें भी 2 टाइप के होते हैं। इसमें क्या होगा, एक वुमन एंड मैनी हस्बैंड। हो सकता है वो जो 2 हस्बैंड है वो आपस में भाई हो या नहीं है। अगर भाई है या ब्रदर है देन इट विल बी फ्रेटर्नल टाइप। इफ दे आर नॉट ब्रदर इट विल बी नॉन फ्रेटर्नल टाइप। एग्जाम्पल, माइथोलॉजिकल एग्जाम्पल है महाभारत, जहाँ पे प्रिंस द्रौपदी जो है वो 5 पांडवों के साथ मैरी करती है। नॉन फ्रेटर्नल टोडास ऑफ नीलगिरी। मैंने आपको बताया है कि टोडास ऑफ नीलगिरी एक ऐसी टाइप है जो तीनों में आप एग्जाम्पल की तरह लिख सकते हो। किस किस में, पॉलीगाइनी में लिख सकते हो, पॉली एंड्री में लिख सकते हो, पॉलीगाई एंड्री में लिख सकते हो। तो मैंने इसको जो है नॉन फ्रेटर्नल में लिख दिया। पॉलीएंड्री का तीसरा टाइप भी होता है जिसको बोलते हैं फैमिलियर पॉलीएंड्री। फैमिलियर पॉलीएंड्री का मतलब होता है कि फादर एंड सन हैव अ कॉमन वाइफ। इन तीनों का मैंने रीजन जो है वो साथ में लिख दिया, इन ऑर्डर टू रिटेन प्रॉपर्टी फॉर फैमिली सिक्योरिटी और पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स। सो ट्राई टू गिव एग्जाम रीजन इन एवरी एग्जाम्पल। सो यू कैन यूज इधर वर्ड एग्जाम्पल और ए केस स्टडी। अब हम बात करेंगे तीसरे टाइप ऑफ मैरिज का जिसको बोलते हैं ग्रुप मैरिज। बेसिकली इसमें क्या होगा, मल्टीपल स्पाउस होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, मार्क्यूसन ऑफ पॉलिनेशिया विच वॉज स्टडी बाई मालिनोस्की। तो ट्राई टू रिमेंबर दिस एग्जाम्पल बिकॉज ये एक ऑथर दे रहा है। इसका क्या रीज़न है, इन ऑर्डर टू कंसोलिडेट
पावर और मैनेज रिसोर्स। अब हम यहाँ पर भी जो कंक्लूजन है वो जनरल कंक्लूजन देने की कोशिश करेंगे, वही 8 और 9 एंथ्रोपोलॉजी के यूनिक पॉइंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्टली शो द इवोल्यूशन, कि अब जो टाइप ऑफ मैरिज है उसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, लिव इन रिलेशनशिप और नॉन हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। इट वॉज गिवन बाय जस्टिस संजय कौल। Thus, it become important to study the type of marriage with culture, relativism and amic approach. I hope you enjoy the video and that's all for today. Thank you. Jai Hind.